Students, in last lecture, we talked about to identify the account whether it is personal, real or nominal. When you will get the idea about the account, in which account the concern topic is related, then only you will transfer that thing in the concern account. So, in last lecture, I explained you how you will identify whether account is personal, real or nominal. In this lecture, okay, I am just showing you how to transfer. It is not journal exactly, but how to transfer and what mental exercise you have to do for that and what are the steps which you follow to solve the sums. It is the exercise for that, and after completing this one we will move toward next lecture and it will show you okay how to draw the journal. So here certain transaction I have mentioned and how to represent it and how you will develop your thinking. We have to do the exercise of that. You can see here a broad column I have made here. In first column, different transactions I have written, and after that you can see from here to here I have made total 6 column. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This 3 column related to debit side and this 3 column related to credit side, and each and every row personal account, real account, nominal account, personal account, real account, nominal account, debit side personal, real, nominal, credit side personal, real, nominal. Okay, and whenever you will write the transaction here in that time, उस समय में आप लोगों को यहाँ पर से कोई एक कंसर्न अकाउंट अफेक्ट करेगा. मान लो कि आपको यहाँ पे रियल कर रहा है तो यहाँ पे पर्सनल, रियल, नॉमिनल में से कोई भी एक होगा. मीन्स यहाँ पे एक होगा, इधर एक होगा. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2-3 होंगे और उधर भी 2-3 होंगे. इट इज नॉट सो. हाँ, इन एक्सेप्शनल केस इट मे बी देयर मे बी 2 1 देयर 1 इट मे बी पॉसिबल. इज इट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट इट. इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग. सो सी फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज देयर. रामचंद्र कमेंस्ड बिजनेस. Ramachandra commenced business with cash ₹50,000. रामचंद्र ने 50,000 रुपए में अपना बिजनेस शुरू किया. अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जो मैंने लास्ट में बताया था, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. whenever you start the transaction, at that time you think you are the owner of that business, means you are the Ramchandra. आप रामचंद्र हो, आपने बिजनेस शुरू किया है और आप बिजनेस में 50,000 रुपीज एज अ कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया. सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड वेरी क्लियरली डिटरमाइन दिस थिंग. योर बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम योर होम, सो कैश इज कमिंग फ्रॉम योर होम टू योर बिजनेस. You have to think like this way. When cash is coming, so in which account cash has come? Means it is personal account, real account and nominal account. So you already studied cash is real account. अब real account के रूल में जाओ. 2 रूल है. Debit what comes in, credit what goes out. Now you think कि whether ये आपका पैटर्न है सोचने का, आपको हर एक सम में यही करना पड़ेगा. Now you think कि कैश आ रहा है या जा रहा है, तो डेफिनेटली कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन. तो कैश को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. किसमें? रियल अकाउंट में, बिकॉज कैश इज रियल अकाउंट. कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड. ओके, कैश अकाउंट डेबिट होगा. अब कैश अकाउंट आपका डेबिट हो गया. सो पैसा कहां से आ रहा है? घर से आ रहा है. हु इज द गिवर ऑफ दैट मनी?
Owner, earlier I told you, whenever you start the business or anything, we never write the owner's name there. Owner is personal account. अब पर्सनल अकाउंट के दो रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. हु इज द गिवर? ओनर इज द गिवर. लेकिन ओनर का नाम लिख नहीं सकते. लेकिन ओनर किस फॉर्म में कैपिटल ला रहा है? सो कैश ला रहा है कैपिटल फॉर्म में. तो कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करेंगे. इट इज जस्ट लाइक दैट कि जब आप बैंक से पैसा विड्रॉल करने जाते हो, अपने खुद के चेक में अपना नाम नहीं लिखते, यू राइट सेल्फ. Similarly, when you introduce money by you in business, you never write your own name in journal, you write capital. So ये याद रखना, cash account will be debited and यहाँ पर आपका personal account, okay, capital account will be credited. And keep one thing in your mind, whatever is coming in the business, when you start or commence the business, जब भी business शुरू कर रहे हो, जो भी business में लेकर आओगे, that everything will be debited. आप फर्नीचर लेकर आओगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा. आप कैश लेके आओगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा. आप गुड्स लेके आओगे तो कहीं से खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा. आप मशीन लेके आए तो मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर वो कैपिटल फॉर्म में आ रही है तो. ये याद रखना, whatever you are introducing in the business, that everything will be debited and capital account will be credited. ये सबसे पहला स्टेप आपको ये याद रखना है. कैश टू कैपिटल. फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर टू कैपिटल, गुड्स आ रहा है तो परचेज टू कैपिटल, और अगर मशीन आ रही है तो मशीन टू कैपिटल. वॉट एवर यू आर इंट्रोड्यूसिंग, सपोज यू आर इंट्रोड्यूसिंग द व्हीकल, देन व्हीकल टू कैपिटल. आपने एक ट्रक इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में तो व्हीकल टू कैपिटल. वॉट एवर कमिंग इन द बिजनेस, इट विल बी डेबिटेड एंड अपोजिट क्रेडिट साइड विल बी ऑलवेज कैपिटल अकाउंट. ये याद रख लेना, भूलना नहीं. फर्स्ट थिंग. सेकंड, 20,000 डिपॉजिटेड बैंक ऑफ बड़ौदा. 20,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए, बराबर. अब 20,000 रुपए गए तो कैश गया. तो कैश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? अगेन इट इज अ रियल अकाउंट. अब कैश रियल अकाउंट है, ओके. अब रियल अकाउंट के अंदर दो रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नाउ थिंक, क्या हो रहा है? कैश आ रहा है या जा रहा है? तो बाय नेचुरल कैश जा रहा है, यानी कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट. तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिट. नाउ कैश इज रियल अकाउंट, कैश इज गोइंग, ओके. तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. अब कैश को क्रेडिट कर दिया है तो अब डेबिट किसको करेंगे? पंगा ये हो गया. तो हु इज रिसीविंग दैट मनी? बैंक ऑफ बड़ौदा. नाउ व्हाट इज बैंक ऑफ बड़ौदा? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. पार्टी का नाम है. अब पार्टी का नाम है तो क्या करोगे? पार्टी का नाम है तो क्या करोगे? डेफिनेटली इट इज पर्सनल अकाउंट. अब पर्सनल अकाउंट के रूल में जाओ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो बैंक रिसीवर है कि गिवर है? अभी बैंक ने पैसा रिसीव किया है एंड दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड. ओके. सो यहां पर पर्सनल अकाउंट में हम लोग यहां पे लिखेंगे बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड. ओके. थर्ड में आ जाओ. अब इसके लिए मैंने आपको स्पेसिफिक पैटर्न इससे पहले भी बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं. गुड्स ऑफ ₹2,000 परचेज ऑन कैश. आपने 2,000 रुपीज में गुड्स खरीदा
तो यहाँ पे आपके थोड़े स्टेप्स बढ़ जाएंगे। सबसे पहले तो यही नक्की करो कि ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। तो बाय नेचुरल ट्रांजैक्शन इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, क्योंकि गुड्स खरीद रहे हैं। अब नक्की करो ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है। तो यहां से देख के मालूम पड़ेगा। गुड्स ऑफ ₹2000 परचेज ऑन कैश, गुड्स 2000 रुपए में कैश में खरीदा है, यानी कैश ट्रांजैक्शन हो गया। अब आगे नक्की करो कि गुड्स खरीदा तो हमारे पास क्या आया, गुड्स आया। अब गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। अब रियल आने के लिए क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब गुड्स आया तो गया क्या अपने पास में से, क्योंकि कुछ आएगा तो कुछ जाएगा भी ना, बराबर है। तो कैश गया। अब कैश कौन सा अकाउंट है, तो वो भी रियल अकाउंट है। देखो अभी यहां पे क्या हो रहा था, रियल अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट था, रियल अकाउंट था। अब यहां पर डेबिट भी रियल है और क्रेडिट भी रियल है। सो गुड्स इज कमिंग, you are purchasing, so you write here purchase account will be debited. Purchase account will be debited. Okay, अब purchase account डेबिट हो गया तो क्रेडिट क्या होगा, because you purchase the goods, तो cash is going, credit what goes out. Cash account will be credited. कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अगला वाला सम देखो। गुड्स ऑफ ₹6000 सोल्ड टू राधा, 6000 रुपए का सामान राधा को बेचा। अब शुरुआत करो स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। राधा को बेचा, सामान अपने पास से गया, बाय नेचुरल इट इज योर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट स्टेप, वेदर इट इज कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बाय नेचुरल यहाँ पे कहीं पे भी ओन वर्ड कैश वर्ड नहीं दिया। देखो यहाँ पे कैश लिखा था, यहाँ पे कैश नहीं है, ओनली पार्टी नेम इज देयर, सो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी कि फ्यूचर में इसका अमाउंट आपको रिसीव होगा, अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है। You sold the goods, goods is going. If goods is going, who is the receiving that goods? Radha. Radha is personal, real और nominal. Personal account रिसीव करने के लिए क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, राधा अकाउंट विल बी डेबिटेड। राधा अकाउंट डेबिट हो गई। आपके पास से क्या गया, गुड्स गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट है ना। ओके, सो नेक्स्ट वन इन क्रेडिट साइड वी विल राइट इन रियल अकाउंट सेल्स, SALE। यहाँ पे हम लोग गुड्स नहीं लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे क्योंकि हमने बेचा है। ओके, तो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओके, सिमिलरली अब इसका एंटी एंट्री, अपोजिट एंट्री, गुड्स ऑफ ₹2000 परचेज फ्रॉम मीरा, मीरा से 2000 रुपए का सामान खरीदा। अब मीरा से खरीदा तो हमारे पास क्या आया, गुड्स आया। ओके, अब गुड्स कौन सा अकाउंट है, सॉरी थोड़ा सा स्टेप, 2 स्टेप छोड़ दिए मैंने, सॉरी। गुड्स ऑफ ₹2000 परचेज फ्रॉम मीरा, मीरा से परचेज किया, तो वहीं से नक्की करो ट्रांजेक्शन आपका इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक है। ट्रांजेक्शन हो रहा है, इकोनॉमिक है। कैश है या क्रेडिट है, कैश वर्ड दिया है, नहीं दिया है, तो क्रेडिट हो गया। अब क्रेडिट है, ठीक है, तो अब क्रेडिट है यानी कि फ्यूचर में पैसा हम चुकाएंगे, आज नहीं चुकाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स इज कमिंग, व्हाट इज गुड्स, रियल अकाउंट। व्हाट्स अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट करो, तो गुड्स आ रहा है, सो यू विल राइट हियर परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट आपका डेबिट होगा। अब परचेज अकाउंट डेबिट हो गया आपका, ओके, तो whom you are giving the goods,
Goods of rupees 2000 purchased from Meera. Meera is the giver of goods. So credit the giver. Okay. Meera account will be credit. मीरा का अकाउंट क्रेडिट होगा भाई, ठीक है। नाउ सी दिस वन, परचेज्ड फर्नीचर रुपीज 1000। अब यहां पे बड़ा पंगा है भाई। पहली बात इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है? डेफिनेटली फर्नीचर परचेज किया तो इकोनॉमिक होगा। कैश है या क्रेडिट है? अगर यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ, दैट्स व्हाई इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। अब कैश ट्रांजेक्शन है तो क्या आया आपके पास में? फर्नीचर खरीदा है, furniture is coming, furniture is real account, debit what comes in, so furniture account will be debited। देखो यहाँ पे जो भी आपका रियल अकाउंट था, देखो रियल अकाउंट में आ रहा है। अब फर्नीचर आया, what has gone from you? Cash. Cash is again real account. Credit what goes out, so cash account will be credited. Next, sundry expense of rupees 300। छोटे मोटे खर्चे, दैट इज कॉल्ड sundry expense। अब आप क्या कहते हैं, होटल में चाय पीने गए, 10 रुपए की चाय आपने पी ली, तो ऐसे थोड़ी ना कोई आप टी अकाउंट ओपन कर दोगे। तो ऐसे छोटे मोटे जो खर्चे हैं, बराबर है, किसी को हमने 2-3 रुपए दान कर दिए, ऐसे छोटे मोटे जो खर्चे हैं, दैट इज कॉल्ड अ sundry expense। sundry expense, अब एक्सपेंस है, बराबर है, और साथ में जो है एक्सपेंस है, तो क्या होगा? पैसा आएगा कि जाएगा? डेफिनेटली whenever expenses are money will be go। so cash is तो मालूम पड़ गया रियल अकाउंट है, लेकिन क्या खर्चा हो मालूम नहीं है, sundry expense। तो एक्सपेंस क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। अब नॉमिनल अकाउंट क्या बोलेगा? ऑल एक्सपेंस लॉसेस टू बी डेबिटेड। तो यहाँ पर जो है sundry expense अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, यानी नॉमिनल अकाउंट में हम लोग लिखेंगे sundry expense account debited। okay, what has gone? Cash has gone, cash account will credited। देखो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ओके, so like that way you have to determine। I am showing you some more examples, और भी कुछ आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब ये कुछ ट्रांजेक्शन और देखो जरा। सी द 9th वन, 8 तक हम लोगों ने किया। सी द 9th वन, सेंड ऑर्डर टू कमलेश रुपीज 12,000। हमने गुड्स का ऑर्डर किया है। सेंड ऑर्डर मतलब हमने गुड्स का ऑर्डर किया है। ओके, अब गुड्स का ऑर्डर किया है तो पहले तो यही नक्की करो ट्रांजेक्शन कैश है या इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है, वहीं से आपको मालूम पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको बहुत चीज सोचनी पड़ेगी। आप बोल दोगे सर ट्रांजेक्शन तो इकोनॉमिक है, लेकिन आया क्या और गया क्या? कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं गया, सिर्फ आपने मुंह से बोला, सामने वाले ने सुना। ओके, गुड्स हैज नॉट कम, यू हैव नॉट पेड, और यू आर नॉट रिसीव्ड, ही हैज नॉट साइंड। सो फर्स्ट नजर में ही ये ट्रांजेक्शन जो है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। कैश क्रेडिट तो बात की बात छोड़ो। ओके, सो दिस ट्रांजेक्शन इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सो यू कैन राइट हियर, ये इसको बुक में कोई जगह नहीं है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, बराबर है।
अब अगला देखो, डिविडेंड रिसीव्ड ₹200। बच्चों डिविडेंड जो है, जब आप किसी कंपनीज वगैरह में कुछ इन्वेस्ट करते हो तो आपके इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड। उसको डिविडेंड बोलते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा, दैट इज द डिविडेंड। अब डिविडेंड आप रिसीव कर रहे हो तो डेफिनेटली, वैसे तो चेक वगैरह में आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको कैश कंसिडर करेंगे। इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ कैश। सो व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस? कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, सो यू विल राइट हियर कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब आप यहाँ पे ये मत बोलना कि कंपनी इज द गिवर, तो कंपनी को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। नो, डिविडेंड आपसे कंसर्न करता है, मैंने शुरू में भी बोला था, बराबर है। यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, सो व्हाट इज, इन व्हाट फॉर्म इज डिविडेंड फॉर यू? इट इज योर इनकम, आपके लिए इनकम हुई। सो ऑल प्रॉफिट एंड गेन टू बी क्रेडिटेड। तो यहां पर जो है डिविडेंड अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डिविडेंड अकाउंट विल क्रेडिट। अब देखो, रियल अकाउंट बेनिफिट हुआ है, नॉमिनल अकाउंट इनकम हुई है, इसलिए इसको क्रेडिट किया है यहाँ पे हम लोगों ने। नेक्स्ट, वेज पेड ₹200। नाउ वेज इज योर एक्सपेंस, अगेन ऑल एक्सपेंस लॉसेस टू बी डेबिटेड। तो यहां पर ये नॉमिनल अकाउंट में डेबिट होगा, वेज अकाउंट डेबिटेड। अब वेज क्या है आपका? You have paid the wage, no? Yes. Now, if you are paying the wage, then what is going from you? Cash is going, credit what goes out. Okay. So here, credit account means real account will be credited. So cash account will credit. All expenses losses to be debit, credit what goes out. And last, purchase machine from Das Limited account ₹15,000। वापस से फर्स्ट स्टेप, ट्रांजेक्शन क्या है? इकोनॉमिक है, नॉन इकोनॉमिक है? मशीन आई है, इकोनॉमिक है। कैश है या क्रेडिट है? क्रेडिट है। रीजन ऑन कैश वर्ड लिखा नहीं है। ओके, तो क्या आया अपने पास में? मशीन। व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट इज मशीन? रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मशीन अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। मशीन अकाउंट विल बी डेबिटेड। ओके, कैश गया है क्या? नहीं, बट हु इज द गिवर ऑफ दैट मशीन? दास लिमिटेड। सो हियर पर्सनल अकाउंट credit the giver, Das account will be credited. And like this way we will think and we will do. Is it clear? Some more sums I will give you in practice from your textbook. Okay, and you will get the PDF of that. So you solve the sums accordingly and write all that things systematically in your book. At any time I will tell you to show me that. Is it clear? So be ready for that. उसके लिए आप लोग जो है तैयार रहिए. Okay, bye.